ओके देखो, नॉर्मली हाउ यू अप्रोच अ शॉप, राइट? शॉप में जाते हो, यू आस्क, यू सेलेक्ट अ कैटलॉग एंड यू सेलेक्ट द प्रोडक्ट, राइट? इट्स द नॉर्मल थिंग. बट अगर इफ यू आर सो कीन नहीं कि मुझे वुडन चेयर चाहिए एंड लेदर सोफा चाहिए, तो इन दैट केस यू विल वॉक टू अ वुडन शॉप, ठीक है, जो लकड़ी वाला फर्नीचर शॉप है, वहां जाके बोलोगे मुझे टेबल दे दो. एंड प्रोबेबली तुम दूसरा लेदर वाले शॉप में जाके बोलोगे कि मुझे एक लेदर सोफा दे दो, राइट? सिमिलर वे, तुम क्रिएट चेयर कॉल करते टाइम तुम बोलोगे कि मेरे पास लेदर फैक्ट्री से ला करके दो. क्रिएट सोफा कॉल करते टाइम तुम बोलोगे कि मुझे वुडन फैक्ट्री से ला करके दो. क्लियर अभिराम? ओके आदित्य, क्लियर विद दिस? कोई और फॉलोअप क्वेश्चन इसमें? Yeah, bro. Yeah, bro. Yeah, bro. I got it. ओके ओके कूल, ठीक है. सो व्हाट वी हैव सीन टिल नाउ, सो नाउ दिस इज अ फैक्ट्री जिसको हम फैक्ट्री बोल रहे थे. ओके, एंड वी हैव दिस लेदर फैक्ट्री एंड वी हैव दिस वुडन फैक्ट्री earlier, and this was having method create chair, create sofa, right? Now this leather factory and wooden factory is implementing this factory interface, right? So ये जो factory interface है, it is now more of a abstraction of this factory as well. ये जो फैक्ट्री थे, जो छोटे छोटे फैक्ट्री थे, लेदर फैक्ट्री थे, वुडन फैक्ट्री थे, इसको भी एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है ये फैक्ट्री इंटरफेस. इसलिए नाउ दिस विल बी नोन एज पॉपुलरली एज द एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री इन दिस डिजाइन. यही है जो कि ये है एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री, ठीक है. So this design looks like more of a this. You have an abstract factory, which is generally a interface, not necessarily, ठीक है. Generally interface I'm talking, क्योंकि देखो generally फैक्ट्री में generally वो इंटरफेस से इम्प्लीमेंट होता है. Many times it can be implemented by abstract class as well, right? हमने जो last example दिया था, it could have been served by both an interface and a abstract class. Normally हमने जो diagram देखा था उसमें it was interface, but we have implemented with abstract class, so it can be implemented by both, but normally interface, ठीक है. So we have this abstract factory and then we have this leather factory. We have this wooden factory, which is implements this abstract factory, ठीक है. ये वाला पार्ट क्लियर है? We have now this abstract factory, we have this leather factory and wooden factory implementing this abstract factory. Whenever we have a new addition, it will follow the open close principle, ठीक है, and it is just going to implement this abstract factory and no changes in the existing code. The new code will be extensible to handle that, right? So it will follow the open close principle. ये वाला पार्ट क्लियर है? abstract factory उसको implement कर रही है ये वाले पार्ट. Now we'll come to the product वाले पार्ट में how it will look like. Is this clear? We have now this abstract factory because this is abstracting the information for these factories as well, right? इन सब का ये abstract form है, इन सब का ये इंटरफेस है, इन सब का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है. कंक्रीट इसके पास लेदर के पास क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? लेदर फैक्ट्री के पास क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी था? चेयर क्रिएट करना है, सोफा क्रिएट करना लेदर में. एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री के पास क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या कॉन्ट्रैक्ट है? इट हैज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ क्रिएटिंग चेयर एंड क्रिएटिंग सोफा. नाउ that's why these all leather factory, wooden factory is implementing this abstract factory. So this part is clear, right? यहां तक कोई प्रॉब्लम this side? Now if we'll go through this chair, ठीक है, and this sofa. अब एक बार प्रोडक्ट हायरार्की पे बात करते हैं, right? Now you have a class or interface chair which will be implemented by a leather chair and wooden chair. Same way यहाँ पे you will be implemented by leather sofa and wooden sofa. So this was the product hierarchy, right? जैसे हमारे पास last example में क्या था, we had a computer, right? And computer was implemented, extended or implemented by PC, server and supercomputer, right? Same way here we have chair and sofa. Chair is implemented or extended by a leather chair or a wooden chair, and same way sofa is extended or implemented by a leather chair or a leather sofa or a wooden sofa, right? So ये वाला product hierarchy की बात था. ये वाला जो hierarchy था ये था तुम्हारे फैक्ट्री की हायरार्की की बात, राइट? सो व्हाट ऑल थिंग्स वी हैव नाउ? वी हैव
लेदर वी हैव फैक्ट्री जिसमें की है लेदर फैक्ट्री, वुडन फैक्ट्री. वी हैव नाउ एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री which will have concrete method which needs to be implemented by the factories. We have the product hierarchy. Okay, and then client वाला जो code होगा, ठीक है, client need to pass on that particular abstract मतलब कौन सा फैक्ट्री से वो क्रिएट करना चाहता है वो पास करेगा. ठीक है, यहां तक कोई डाउट? क्लाइंट वाले कोड पे विल कम, क्लाइंट वाला कोड विल सी. यहां तक कोई डाउट है? Product hierarchy and this factory की hierarchy, how it is looking like? ओके, ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं. ठीक है, ये रियल वर्ल्ड मतलब अभी जितना भी एग्जांपल था ये वुडन वाला, ये रियल वर्ल्ड वाला था, राइट? अब एक बार नॉर्मली कंप्यूटर में जनरली ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं. ठीक है, यू हैव थीम, राइट? अब देखो ये एग्जैक्टली सेम डिजाइन लगेगा एंड कहाँ यूज होता है वो भी देख लो. वी हैव कंप्यूटर में थीम, राइट? कंप्यूटर एंड मोबाइल फोन में थीम चलते हैं, जैसे डार्क थीम है, वी हैव सम, जैसे इंटेलिजा में थीम है बहुत सारे, राइट? डार्क थीम होता है, बहुत सारे थीम आते हैं, राइट? सो हर एक थीम का इंपॉर्टेंस क्या है? थीम का इंपॉर्टेंस क्या है कि दे हैव सर्टेन वे ऑफ डिफाइनिंग द एलिमेंट्स, राइट? तुम अगर ले सपोज प्रोबेबली डार्क नाइट थीम चुन रहे हो तो तुम्हारा बटन किसी और तरीके से दिखेगा. अगर तुम लाइट थीम चुन रहे हो तो तुम्हारा बटन किसी और तरीके से दिखेगा, राइट? सो दैट थीम, ठीक है, दैट थीम इज अ एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री नाउ. ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री. और उसमें क्या है? क्रिएट बटन. मतलब अभी मैं दो एलिमेंट कंसीडर कर रहा हूं, क्रिएट बटन एंड लेट्स सपोज क्रिएट लेबल. ठीक है, इफ यू हैव दिस बटन एंड लेबल लेट्स सपोज, ठीक है, तो ये जो थीम है व्हाट इट विल डू, इट विल चेंज द कलर टाइप ऑफ दैट बटन, राइट? एंड चेंज द लेबल. तो मतलब ये एक तरह से मान लो तो ये बटन क्रिएट करेगा एंड लेबल क्रिएट करेगा. एंड दिस थीम विल बी इंप्लीमेंटेड बाय योर डार्क नाइट थीम, योर लाइट थीम और जितने भी अदर टाइप के थीम आ रहे हैं, राइट? Everyone is going to implement this theme interface and provide the implementation of this button label ki how it will look like in my theme, right? So now this theme is what is called a abstract factory, and this dark night theme is your factory. इस वाले एग्जांपल को उससे रिलेट कर पा रहे हो? इसमें कोई डाउट? I want a yes or no here. इसमें कोई डाउट, फॉलो क्वेश्चन, बिकॉज ये एक इंपॉर्टेंट है कि उसको कैसे रिलेट हो रहा है वो चीज चेक करो. वुडन वाला जो एग्जांपल था दैट वाज मोर ऑफ अ रियल वर्ल्ड एग्जांपल. ठीक है, एंड दिस इज मोर ऑफ अ प्रोग्रामिंग एग्जांपल जो कि यूज होता है. सो कैन वी, मतलब आर यू एबल टू रिलेट दिस एग्जांपल विद दैट? yes or no? एक सेकेंड, आई विल कम बैक इन अ मिनट. yes, hello, yeah, clear till here?
Yeah, bro. Huh. ओके सो एबल टू रिलेट कि जो जो एग्जांपल हमने लिया, जो एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री था, ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं इसी का, ठीक है। लेट्स सपोज नॉर्मल, राइट, ये एग्जांपल तुमको रिफैक्टरिंग ग्रुप में भी मिल जाएगा। जियो फैक्ट्री, ठीक है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की फैक्ट्री है। नाउ इट नीड्स टू बी इम्प्लीमेंटेड बाय मैक, ओके, एंड विंडोज, okay. So Mac will have a different types of button and Windows will have a different types of button, right? Mac में जो बटन होगा वो अलग दिखता है and Windows में भी जो बटन है that can look different, right? Now, so this GUI factory, so it will be implemented by Mac and Windows. So GUI factory में let's suppose currently let's see we have only two elements. Let's suppose button, okay, and let's suppose we have a button है और let's suppose checkbox है, okay. Now this needs to be implemented by both Mac and Windows, right? So now this Mac has what responsibility? Creating the button as well as creating the checkbox for a Mac, right? And this Windows factory has a responsibility of creating button and creating checkbox for the Windows, right? So this Mac is Mac factory, this Windows is Windows factory, right? And it is implementing this particular class, which is a GUI factory, right? Which is known as यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री, राइट, क्योंकि ये फैक्ट्री का फैक्ट्री है, मतलब फैक्ट्री के भी इंफॉर्मेशन को ये एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है। अगर सेम एग्जांपल को इफ वी नीडेड टू इंप्लीमेंट इट थ्रू अ नॉर्मल फैक्ट्री डिजाइन, तब कैसा होता? वी हैव अ जीयूआई फैक्ट्री, ओके, यहाँ पे हमारे पास एक मेथड क्या है? क्रिएट बटन, राइट, क्रिएट बटन। इट विल रिसीव अ पैरामीटर ओएस एंड बटन के लिए अगर कुछ और चाहिए तो लेट्स सपोज सिर्फ ओएस चाहिए, राइट, जो या फिर स्ट्रिंग ले लो, मैक चाहिए या विंडो चाहिए, एंड बेस्ड अपॉन दैट इफ मैक क्रिएट दिस, इफ विंडोज क्रिएट दिस, विल हैव सिमिलर क्रिएट चेकबॉक्स। यहाँ पे भी सेम कोड होगा, इफ मैक दिस, इफ विंडोज दिस, राइट। Or if we needed to implement one new OS, we are going to make changes every class, right? Create button में change होगा, create checkbox में change होगा, right? Which is a violation of the open closed principle, right? So for that we need to go through the abstract factory. So now let's see what is the advantage and disadvantage of a abstract factory is, and then in the next one we'll see the how the exact code will look like, कैसे उसके कोड को क्रिएट करना है। ऑलमोस्ट वी हैव सीन कि कैसा स्ट्रक्चर दिखेगा, बट इन नेक्स्ट विल सी कि हाउ द क्लास एंड द इंटरफेस डिजाइन विल लुक लाइक एंड हाउ इट विल लुक लाइक इन अ एग्जैक्ट कोड, ओके। क्या क्या लगता है इसका एडवांटेज है? एडवांटेज क्या क्या है? व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री? जो कॉम्प्लेक्स इफ एल्स, जो इफ एल्स थे उसको एलिमिनेट करता है, राइट? जो तुम्हारे कोड में इफ एल्स थे फैक्ट्री में प्रेजेंट, उसको एलिमिनेट करने का काम करता है, यस और नो? Yes, bro. सेकेंड वन इज प्रोबेबली ओपन क्लोज प्रिंसिपल को रिस्पेक्ट करता है, एंड वी हैव सीन हाउ, राइट, ओपन क्लोज प्रिंसिपल कैसे रिस्पेक्ट हो रहा है, दैट वी हैव सीन, राइट। डिसएडवांटेज क्या है? और भी एडवांटेज हैं, जैसे सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल भी है, सबका सेग्रीगेटेड है, बट दीज आर द मोस्ट ऑब्वियस यूज या मोस्ट ऑब्वियस एडवांटेज, ठीक है। डिसएडवांटेज में क्या है? लिटिल कॉम्प्लेक्स, मतलब कॉम्प्लेक्स नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि मोर कोड टू इंप्लीमेंट, मोर कोड टू इंप्लीमेंट। अब मोर कोड कैसे इंप्लीमेंट हो रहा है? हर एक, जब भी तुमको एक नया क्रिएट करना है, उसके लिए तुमको एक पूरा का पूरा नया क्लास बनाना है, इट इज गोइंग टू इंप्लीमेंट दैट एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री, एक नया क्लास एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री बनेगा, राइट। सो कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस इसमें क्रिएट हो रहे हैं, सो मोर कोड, राइट। अगर ये फैक्ट्री रहता तो इतना कोड नहीं रहता, बट इस वाले केस में मोर कोड है टू सॉल्व मल्टीपल प्रॉब्लम्स, राइट, ठीक है। उसके बाद
किस केस में यूज करना चाहिए फैक्ट्री एंड किस केस में यूज करना चाहिए एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री। देखो एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री का जो ओरिजिनेशन था इट वाज फ्रॉम अ फैक्ट्री ओनली, राइट। सो फैक्ट्री के ही कॉम्प्लेक्स केसेस के लिए एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री आया है। सो द वन इज कि व्हेन द ऑब्जेक्ट क्रिएशन लॉजिक इज कॉम्प्लेक्स, एंड द सेकेंड व्हेन यू हैव मतलब साथ में काम करने वाले ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट्स दैट वर्क टुगेदर, ठीक है। when you have use case where the objects are working together, it is an indication you should go to a abstract factory, ठीक है। जैसे कि अगर सिर्फ तुम्हारे पास एक ही हायरार्की है, any hierarchy if you have, एक सेकेंड, so if you have a single hierarchy मतलब किसी भी एक जगह से स्टार्ट हो रहा है, एनीथिंग, लेट्स सपोज कमांड है, राइट, लेट्स सपोज यू हैव समथिंग कॉल्ड कमांड, यू हैव कंप्यूटर, या अपने रियल वर्ल्ड से जो भी तुमने कोड में इंप्लीमेंट किया होगा और उसमें से कोई भी एक टाइप का ऑब्जेक्ट है और सारी हायरार्की सिर्फ इससे ओरिजिनेट हो रही है। जैसे दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल दैट आई हैड फ्रॉम वन ऑफ माय, जहां पे मैं प्रीवियसली काम कर रहा था वहां के कोड से, कमांड था, राइट। तो वहां पे बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के कमांड थे। सो फॉर दैट वी हैड द कमांड फैक्ट्री। सो व्हेनेवर we'll have a single hierarchy of objects, go with a factory. Whenever you have multiple group of objects that is going to work together, go with a abstract factory. ये लाइन जो है क्लियर डिफरेंशिएशन क्रिएट कर सकती है कि जब सिर्फ एक हायरार्की का ऑब्जेक्ट रहना है तो गो विद अ फैक्ट्री, जब तुम्हारे पास मल्टीपल साथ में काम करने वाले ऑब्जेक्ट है विच हैव अ डिफरेंट हायरार्की, यू कैन गो विद अ एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री, ठीक है। एनी क्वेश्चंस टिल नाउ, ठीक है। सो विल स्टॉप हियर, ठीक है। एनी क्वेश्चंस, आई विल बी हियर फॉर 2 more minutes, ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन है तो। एंड देन इन द नेक्स्ट सेशन विल सी इंटायर ये जो पूरा डायग्राम है ये कैसे दिखता है, क्लास इंटरफेसेस उस अराउंड पे, ठीक है, क्लास डायग्राम में, एंड देन विल शो हाउ इट्स एग्जैक्ट कोड विल लुक लाइक। If we know lot more new themes are going to be added in future, in that case also we should abstract factor, exactly, this is one of the key advantage, because जब भी तुम्हारे पास कुछ नया एडिशन होने वाला है, so it is going to change your factory, right, factory में open close principle violate होगा। so for that अगर तुम्हारे पास ऐसा use case है in which you are sure कि new things are going to come up, always go with a abstract factory one, because it prevents the open close principle, मतलब एग्जैक्ट मतलब जो एक्चुअल कोड है उसमें कोई चेंज नहीं होता है, जस्ट द न्यू कोड इज गेटिंग एडेड। So generally abstract factory का origination comes from a factory only. People start with a factory and when they realize कि things are getting complex, they move to a abstract factory. So abstract factory का खुद में भी बहुत एडवांटेज है। abstract factory एक लेवल ऊपर है, बट जब तक जरूरत ना हो डोंट अननेसेसरीली रीइन्वेंट, मतलब प्रोग्रामिंग में एक बहुत अच्छी कहावत है, जब तक जरूरत ना हो तब तक ओवर इंजीनियर करने की जरूरत नहीं है। सो ऑलवेज स्टार्ट विथ अ सिंपल, गो विथ अ फैक्ट्री, कॉम्प्लेक्स यूज केस आ रहा है, यूज केस चेंज हो रहा है, गो विथ एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री। एनी क्वेश्चंस, और कोई क्वेश्चन? Cool, ठीक है। Then in that case no further question, we'll stop here, okay, and in the next session we'll see the those diagrams and the actual code, okay, cool, bye bye guys.